And welcome to the Dumb Shit Podcast. It's your boy Shiv. I'll be your host for the day, and we are going to talk about a lot of stuff. This podcast exists because I am a man of limited capacities, capabilities, and talents, but my friends are not. And most of the individuals that you are going to see throughout this entire season are individuals who are super capable, and we're going to have an amazing season. On today's podcast, we have Shubham Agarwal. You all should go and hit him up on LinkedIn. Man's a director where I work, and he's also a poet. And I had to find his creative side by having as many conversations with him as I could, and it was really interesting to me how an individual can just leave behind all of their passions and pursue their work and pursue it diligently with passion, which implies that this man knows how to bucket his thoughts, his ideologies, his skill sets, and it's a very big learning for me, to be very honest. I'm not an individual who knows how to bucket things. Mostly things prevail as chaos in my head, and organizing this chaos is something that I'm looking forward to learn. So here we go. Hello and welcome back to the Dumb Shit Podcast. It's your boy Shiv, and today we have with us a special guest for the poetry episode. This is Shubham. Shubham, please say hi to the camera. This is going to be your best friend for like the next 15 to 20 minutes. Hey everyone, hi, Shubham here. Thanks, Shivankar. Thanks for having me. And Glad to have you here. excited, super excited to have a conversation with you around poetry. Yeah, let's start. Yes. So before we get started with the entire this thing, I just want to give a quick shout out once again to Tara Clay Works, the studio we are at. You can see all of these beautiful pieces and the likes, and they have sponsored our podcast venue. So you all better go check it out. Otherwise, I come beat you up personally. Anyway, so Shubham, I have a lot of questions, obviously, as I always do. But the ones that I want to ask you firstly, can you tell us a little bit about the origin of your interest towards poetry? Like, how did you get into it? What was it like? And that driving factor that kind of like pushed you towards poetry. Yeah. Can you just give us a little insight into that? Sure. So first of all, I'll keep it in English plus Hindi. Sure, जहाँ पे sure. मुझे जैसे feel आ रही होगी, तो I'll keep on doing it. तो हाँ, I think what I think is कि जो भी आप बचपन में जैसे आपका स्टार्ट होता है, right? How your childhood experiences are, it plays a important role in shaping up your personality. तो मुझे याद है कि like जैसे बचपन में क्या होता था कि so I am from Kanpur. अच्छा. So there like lot of course every festival is being celebrated there. But जैसे Diwali and all those things are of course are celebrated in a much bigger fashion. तो वहाँ पे से रामलीला होती थी. तो हाँ. पापा मुझे और भैया को लेके आते थे. Of course, like Kanpur is like very populous city. तो of course लोग भीड़ बहुत होती थी. We used to go and it used to happen in a like मतलब बहुत बड़ा मैदान टाइप का होता था. तो मुझे I could if I'm speaking I can sense it कि हाँ मतलब overall ऐसे छोटा सा स्टेज दिखता था दूर से, right? And we were small of course, right? तो जब तक हम लोग पहुंचते थे तब तक वो बहुत दूर तक ऑलरेडी सीट्स भरी होती थी एंड यू आर स्टैंडिंग, राइट? सो तो उसमें होता था कि हाँ ऑफ कोर्स आपको सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, यू कैन नॉट सी द कैरेक्टर्स, राइट? सो बट ऐसा होता था कि पापा ऐसे हम लोग कंधे बिठा कर कभी बात दिखाते थे, तो कभी हम लोग ऐसे टर्न बाय टर्न दिखते थे. बट एट दैट टाइम ऑल्सो मेरा फोकस उस समय ज्यादा इस चीज पे होता था कि लोग क्या देख रहे हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टेज एंड क्या चल रहा है, आई यूज्ड टू ऑब्जर्व people more in terms of what they are doing, in terms of how they are reacting to what is happening on the stage. So I think उस टाइम से मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन वाली जो चीज है वो मैंने वहीं से मेरी वहीं से स्टार्ट हो गई थी. एंड लाइक आई थिंक टिल नाउ इट जस्ट कंटिन्यूज वेयर आई फील दैट इवन इफ आई गो टू एनी कॉन्सर्ट आल्सो, ऑफ कोर्स आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्टेज, बट मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि हाँ लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. Not in a stalking way, but yes, definitely in an observation point of view. So I think observation wali cheez is very important if you are in like any kind of creativity thing, right? So I guess वो वाली चीज वहां से start हुई. Then हाँ मतलब I felt कि even in school I used to take part in debates.
Hmm. और उस समय भी ऐसे होता था जैसे कि मतलब मुझे ऑफ कोर्स आई कैन मेमोराइज एवरीथिंग जो बोलना होता था Oh, I और think मेरी this helped you get into a lot of places also. या जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी एक्चुअली हैड दैट एट दैट टाइम सो Fancy. तो एट दैट टाइम ऑफ कोर्स नॉट नाउ बट हाँ तो उस समय ये होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल डिबेट में पार्ट लेना है तो आई न्यू कि मुझे क्या बोलना है एंड द ओनली यूएसपी आई हैड वाज कि मेरी आवाज बुलंद है तो इट वाज लाइक कि लोगों को टीचर से लगता था हाँ ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा है इससे कराना चाहिए राइट तो देन आई स्टार्टेड बेसिकली परफॉर्मिंग ऑन स्टेज तो उसमें मैंने डिबेट्स में पार्ट लिया तो थोड़ा सा आई थिंक स्टेज फियर उससे कम हुआ है स्टार्टेड आई डिड सम डांस परफॉर्मेंसेस एज वेल 2-3 गानों पे रिमेम्बर कि हाँ उसमें किया इवन बर्थडेज जो हम लोग की होती थी उसमें याद है बच्चों भाई नाच के दिखाओ राइट सो मी एंड माय ब्रदर used to you know like dance in some of the trendy songs at that time तो उसमें जैसे एक पल का जीना से Ah, गाना ऋतिक का ऑफ कोर्स का फेमस होता राइट सो उस पे वी यूज्ड टू डांस तो आई थिंक उसी से ही थोड़ा सा वो कल्चर वाला चीज इम्बाइब हो रहा था राइट इवन इन माय होम पापा को भी काफी शौक है गाने का भैया इज ऑल्सो इनटू म्यूजिक ही ऑल्सो परफॉर्म्स in you know like in different capacities he has his own band etc तो आई थिंक वो म्यूजिक एंड ओवरऑल आर्ट वाला जो कल्चर है वो वहां से धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट हुआ पोइट्री का आई थिंक काफी लेट हुआ राइट सो तो आफ्टर माय स्कूलिंग व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज तो उस समय ऑफ कोर्स जहाँ कॉलेज में आता उस समय मेरे दिमाग में तो यही था कि यार देखो ऐसा है अब पढ़ाई वढ़ाई कर ली राइट सो hmm. अभी क्या है कि अभी थोड़ी सी मस्ती करनी है राइट एंड ऑफ कोर्स एट दैट टाइम यू थिंक कि यार ऑफ कोर्स उस समय आप बड़े हो रहे होते हो राइट तो प्यार Hmm. मोहब्बत एंड ऑल दोस थिंग्स आर बेसिकली ऑन टॉप ऑफ योर माइंड Hmm. कि भाई उसी के अराउंड आप सोच रहे होते हो तो आई थिंक इन कॉलेज वी हैड डांस ऑडिशंस एंड ये आई थिंक तब भी था ये अभी भी वैलिड है कि यू नो लाइक लड़कियों को ऐसे जो लड़के अच्छा डांस करते हैं बहुत पसंद है उनको यार ये करना है यार एंड Nice. एनीवे आई हैव डन दैट इन द स्कूल आई वाज लाइक यार ठीक है चलो लेट्स गो फॉर द डांस This ऑडिशन is in your undergraduate? हाँ यस सो Okay. इट्स लाइक प्रॉब्ली इन द फर्स्ट ईयर जब वो स्टार्टिंग में आपका Hmm. फर्स्ट 1 मंथ होता है जब आपको यू कैन टेक पार्ट इन डिफरेंट थिंग्स एंड फ्रेशर्स की जो पार्टी होती है उसमें वी यूज्ड टू हैव दीज you know performances जहाँ पे freshers perform कर सकते हैं and instantly from the seniors I got to know कि instantly you can become famous right तो मेरा था यार कि हाँ ठीक है सही है यार बढ़िया है डांस This was in Kanpur? हाँ this was in Kanpur so I have studied in IIT Kanpur so Okay. it's way back in 2011 ये Oh. 2011 की story right, Nice. We're just 15 years away from there. yeah 15 सालों में इतना सब कुछ हुआ है. much more than that thanks Nice. thanks to COVID as well but yeah काफी ज्यादा टाइम तक चलता है तो हाँ तो लाइक आई वेंट देयर एंड ऑफ कोर्स उसमें काफी ज्यादा भीड़ थी एंड एंड वहां पे सेम जगह पे ही डांस के ऑडिशन भी चल रहे थे ड्रामा के ऑडिशंस भी चल रहे थे सो आई थॉट ड्रामेटिक्स के तो आई थॉट कि चाहिए चलो यार डांस में इतनी ज्यादा भीड़ है तो ड्रामेटिक्स का दे लेते हैं हाँ. तो ड्रामेटिक्स में उस समय स्किट के ऑडिशन चल रहे थे तो एक छोटी सी स्किट होनी थी उसके अराउंड देवर ऑडिशनिंग फॉर द कैरेक्टर्स तो मैं चलो ठीक है यार यहाँ पे दे लेते हैं तो आई वेंट देयर वहां पे मैंने उनको एक छोटी सी एक स्क्रिप्ट दी एंड मैंने अपना वही डिबेट वाला दिमाग लगाया कि यार कि ठीक है इसको अच्छे से बोल लेते हैं मेरे सामने जो था वो आई थिंक उतना अच्छे से नहीं बोल पाया तो आई गॉट सेलेक्टेड एंड देन आई Nice. स्टार्टेड यू नो लाइक डूइंग द रिहर्सल एंड एवरीथिंग आई थिंक देन ऑल्सो ऑब्जर्वेशन प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि जैसे स्किट जो थी तो स्किट का जो ओवरऑल प्रेमाइस था इट वाज अराउंड लगान मूवी अच्छा. तो उसमें हम लोगों ने ट्वीक्स ऑफ कोर्स कॉलेज वाले ट्वीक्स एंड डायलॉग्स कर दिए थे बट द सेटअप वाज ऑफ लगान तो दे वर लुकिंग फॉर आमिर खान कैरेक्टर अब मैंने यार कि मैंने आज तक कभी ऐसे कभी देखा नहीं कि यार क्या उसमें ऐसे मिमिक्री है क्या करनी होती है Hmm. सो जो सीनियर थे मेरे उन्होंने कहा कि यार 2-3 लोग जो भी कह रहे थे कि हाँ कौन कौन करना चाहते हैं मैं तुरंत हाथ उठा दिया मैं पता नहीं कि कैसे करना है आई जस्ट रेज माय हैंड एंड देन दे टोल्ड अस कि ये करना क्या है कि सो तो मैंने थोड़ा सा करके दिखाया राइट तो दे रहे हाँ अच्छा चल रहा है देन आई कंटिन्यूड एंड देन वी रिहर्स्ड एंड जब वो स्किट हुई so it was an open air theater we had an open air theater system right so there was a stage and then you have 800,000 people तो जैसे ही मैं स्टेज पे आया एंड देन आई सेड उत्तरी हाँ ऐसे ही है सही है सो लोग एकदम से लाइक एंड ऑफ कोर्स लाइक कॉलेज में यू गेट मच बेटर सपोर्ट देन आउटसाइड बट आई थिंक वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था फॉर मी
राइट, इन टर्म्स ऑफ जो भी उससे आपको एकदम से यू नो लाइक द काइंड ऑफ हैप्पीनेस दैट यू गेट, राइट, एंड द काइंड ऑफ एफर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस कि यार भाई मजा ही आ गया, राइट, कि यू कैन लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट व्हाट यू फील, दैट यू नो लाइक कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है स्पेशली इन सच परफॉर्मेंसेस, तो उससे मैं ड्रामेटिक से जुड़ पाया, so I could and then I started doing plays and theater. So what pulled you to poetry हाँ, from so there? then Yes. फिर वो उसके बाद फिर ये हुआ कि I think after college ये सब करने के बाद जब मैं बैंगलोर आया, so I tried doing some stuff, but because of office and everything, I think वो हो नहीं पाया. Even during my college days, I started reading poetry. थोड़ा सा मैं पढ़ता था, but it was not like I used to give time or something. It was just around कि you know किसी ने आपने उस समय कुछ ऑफ कोर्स उस समय इंस्टाग्राम उतना नहीं था शायद, तो उस समय फेसबुक नहीं आ पड़ते थे कि हाँ फेसबुक में कुछ शायरी पढ़ ली तो अच्छा लगता था. आई थिंक फॉर मी द पोएट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि यार आप कम शब्दों में बहुत कुछ कह पाते हो. So in this regard, when you approach poetry, do you do it from the standpoint of, given it's a passion, do you approach passion in and of itself from the standpoint of mastery, or are you more focused on the exploration aspect of it? Do you want to be like the best, or do you want to get into like competitive you know, aspects of it, or does it interest you more to be perhaps somebody who's just checking out all of the different things, experiment कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वगैरह? I think it's a combination of both. जब आप start भी करते हो, even when I started, तो उसमें भी ऐसा नहीं था कि like I think the start करने का जो सबसे important objective था वो ये था कि आपको अच्छा लग रहा है, right? And of course first you start reading, right? When जब मैं यहाँ पे भी जब बहुत कुछ नहीं कर रहा था तो उस समय I think ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी का अगर आपके अंदर कीड़ा है तो हमेशा जिंदा तो रहता है, राइट? तो उस समय ये था कि आपको उसको जिंदा रखने के लिए क्या करना है, एंड आई थिंक पोएट्री गिव्स यू दैट यू नो लाइक दैट स्पेस वेयर यू डोंट नीड एनीवन एल्स. सिर्फ आप हो, आपके थॉट्स हैं, एंड यू नो लाइक पोएट्री है आपके साथ, राइट? तो आई थिंक दैट हेल्प मी टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू दैट जोन कि आप पहले उस दुनिया को समझने की कोशिश करो. तो आई गेस वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती. It's just that the first objective is कि आपको पसंद आ रही है, धीरे धीरे आप उसको समझने की कोशिश करो, and then poetry helps you to know yourself better. So I think I took that I think that approach. तो जैसे जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने बस पढ़ना स्टार्ट किया. मेरा वो था कि यार जो भी अपने फेमस पोएट्स हैं, राइट, बीट वसीम बरेलवी साहब, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, राइट, जॉन हेगे साहब, तो आई थिंक उन सब की मैंने थोड़ी सी पोएट्री पढ़ना चालू किया. आई वाज लाइक ऑस्ट्रक मैन कि यार ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है. लाइक दिस इज सो डीप, दिस इज सो क्लियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू से. हर एक चीज इतनी ज्यादा क्लियर कैसे हो सकती है, राइट? तो आई थिंक फॉर मी दैट बिल्ट एन इंटरेस्ट इन दैट कि यार ये चीज करनी है, राइट? हाउ कैन आई से सच डीप थिंग्स इन वेरी शॉर्ट सेंस, राइट? तो आई थिंक उससे मेरा उसकी तरफ इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ. एंड देन आई थिंक एंड ऑफ कोर्स आप जब लिखना स्टार्ट करते हो तब थोड़ा सा आप एक्सपीरियंसेस का अपना मसाला उसमें डालते हो. बट आई थिंक इट्स मोर अराउंड ऑब्जर्वेशन, एज आई सेड, राइट, कि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है. एंड आप हर समय आपका वो मोड ऑन रहता है, राइट? इट इज नॉट लाइक कि आप जैसे यू आस्क्ड अबाउट कि यार डिसिप्लिन एंड आप कैसे एक्सप्लोरेटरी. आई थिंक इट जस्ट गोज हैंड इन हैंड. जैसे फॉर एग्जांपल इवन इफ आई एम सिटिंग विद यू, आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग यू इवन व्हेन आई एम स्पीकिंग, राइट? एंड वो चीज मैं कहीं और पे कैसे यूज करूंगा. Right? And that is something that even a poet, an actor, everyone uses that, right? तो हाँ, I think ऐसे मैं digress हो जाता हूँ. Right? नहीं, but it's your podcast, you can digress as much as you want. So हाँ, I think it takes both the things कि you will have to explore yourself, you will have to explore in terms of कि क्या poetry, किस तरह की शायरी आपको पसंद आ रही है. There are different sets of शायरीज. तो किस तरह की शायरी आपको पसंद आ रही है, किस तरह का आप लिखना चाहते हो. क्योंकि बहुत सारी ऐसी शायरी होती है जो मैं लिखना चाहता हूँ, राइट, या मे बी वो जनता तक ना पहुंचे, राइट? ऐसे फॉर एग्जांपल रोमांटिक शायरी बहुत जल्दी जनता तक पहुंचती है, राइट? सो बट फॉर मी एटलीस्ट वो मेरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन है, राइट? इट वुड बी इजियर फॉर मी टू राइट रोमांटिक शायरी देन एनीथिंग एल्स, राइट? बट मेरे और भी जॉनर्स है जो मैं लिखना चाहता हूँ या जिसपे मैं ट्राई करता रहता हूँ.
तो आई थिंक वो सभी इट्स एन एक्सप्लोरेटरी थिंग, राइट? डिसिप्लिन उसमें आता है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, राइट? इवन इफ यू डोंट गेट टाइम टू लेट्स से राइट, but at least take out time to read, right? Fair enough. And it can be 10 minutes, it can be half an hour, you can read, you can listen, you can do anything, but at least आप वो चीज करो रोज। तो उससे क्या है ना कि वो आपका एक तरीके से आपकी धार तेज होती जाएगी, आपका माइंड भी उस तरफ ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स लीड टू व्हेन यू राइट अ 2 लाइन शायरी, राइट? उसके पीछे का जो बैक स्टेज का जो काम होता है वो आपको रोज करना ही पड़ेगा। आई थिंक दैट्स वेयर द डिसिप्लिन कम्स, but still at the same time you have to keep on exploring. So yeah, fair enough. So इसी regard में you mentioned that romantic poetry is kind of something that comes easily to you, but we want to know you in your comfort zone. So if you have prepared something for the podcast, that would be awesome. I'd love for you to probably even look at the camera and perhaps narrate or recite, right? Poem ka recitation hota hai. Sure. See, I'm a dumb guy. You all know the context of the podcast. I'm just trying to learn some new shit. So, if you could recite one piece of poetry, maybe you will find somebody. God knows. But yeah, you could look at it and ऐसा बिल्कुल भी with complete emotion. Objective नहीं है, but इसमें okay, I'll start with something जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। Okay, by all means. I'll start with that. So, तो एक मुनी नियाजी साहब करके एक हैं। Okay, so this one is not written by you. हाँ, ठीक है, इसको आप मेरी तरफ देख के बोल सकते हैं। But ये काफी मुझे पसंद है, right? So it's like basically talks a lot about life, right? So Irshad. Is this shairi or is this like it's a kind of a poem? It's a kind of a poem. So here it goes that हमेशा देर कर देता हूँ, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार की ढांढस बनाना हो, बहुत देरी ना रास्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। वाह! तो ये this basically why I like this poem a lot is क्योंकि ये जैसे लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई होती है, राइट? What it talks about is कि we suffer much more in our minds than in our lives, right? Yes. So I think हम लोग overthink बहुत ज्यादा करते हैं, right? Can't relate, but yes, if you say so. Yeah, applicable for normal जनता. यार, and of course it has happened with me as well कि आप hesitate भी बहुत करते हो, आप सोचते बहुत ज्यादा हो कि अच्छा अगर मैंने ऐसा किया तो ये ना हो जाए, right? In different situations, it can be different situations for everyone. But we overthink a lot. We hesitate. We could have done, and we always have some regrets, right? कि यार ये कर सकते थे यार, या इसको ये बोल सकते थे यार. It can be your friend, it can be your lover, it can be your family, etc. Friends, right? But we always have those things कि जहाँ पे हम लोग को लगता है काश, right? तो जैसे एक बार मैंने लिखा था कि जिंदगी कटी दो अल्फाज में, एक काश में एक आस में, राइट? तो लाइक आवर लाइफ just revolves around these things only, right? कि हाँ काश ये हो जाता या फिर वो ये नहीं हो पाया, right? So I think poetry sums up life in such a way that you get to know so many things from just one poem. तो जैसे let's say कोई ये सुन रहा है, right? So of course you like the poem, एक one चीज होती है, but उसके अलावा आप उसको कैसे अपनाते हो, right? जैसे for example I started consciously doing this कि यार बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, right? ज्यादा सोच के भी क्या ही कर लेते, fair. At least also ये अपने आप लिखा ना आपने, हाँ ये वाला, so why don't you look at this camera one time and say it, just stare right into it, सबके आत्मा के अंदर झांक के बताइए, right there. कि जिंदगी कटी दो अल्फाज में, एक आश में एक कास में.
I'll give a retake. Yes, retake. Let's go. LFG. कि जिंदगी कटी दो अल्फाज में, एक आस में एक काश में. So, so LFG. I'll cover more. I'll have to search in my phone, but हाँ. For sure. Let's go. तो हाँ ठीक है, चलो एक काम करते हैं. I'll just cover one more रोमांटिक, क्योंकि तुमने रोमांटिक वाली. Yes, रोमांटिक वाली एकदम वहाँ पे ताड़ के आपको देख के बोलना है. ये वैसे मैंने आई थिंक वैलेंटाइन से बहुत पहले लिखी थी, बट हाँ बिकॉज एप्लीकेबल ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे. बट हाँ, प्यार तो हमेशा जिंदा रहता है और 365 दिन चलना चाहिए. डेफिनेटली. और हमको भी ये आस है कि कोई मिसेस अग्रवाल हमको यहाँ पे मिल जाए. से बाय ऑल मींस प्लीज स्टेयर इनटू दिस कैमरा. Just an FYI, that's not the objective of this podcast. My objective, but yeah. तो here it goes कि प्यार का मौसम चल रहा है. क्या कहती हो, किस बारे में लिखूं? उस धड़कन के बारे में जो रुक गई थी तुमसे नजरें मिलने पर, या उस हिम्मत के बारे में जब तुमसे होमवर्क की कॉपी मांगी थी, या उस शरारत के बारे में जब दोस्त को बहलाकर तुम्हारे साथ बैठा था, या उस डांस के बारे में जो मैंने मन ही मन किया था तुमको पहली बार हंसता हुआ देखकर, या उस खुशी के बारे में जब तुम्हारे साथ तारों की छाव में पहली बार चला था, या उस आंसू के बारे में जब तुमको टूटा हुआ देखा था, या उस डर के बारे में जब तुमको खोने का ख्याल आया था, या उस ख्वाहिश के बारे में जब तुमसे कहना बहुत कुछ था और कह नहीं पाया, या फिर इस कविता के बारे में जो अब कविता नहीं बस मेरी अनकही बातें लग रही हैं. खैर, चाय ठंडी होने से पहले बताना जरूर किस बारे में लिखूं. वाह. तो हाँ, आई थिंक हाँ ऐसे ही आती रहती है दिमाग में. इट ऑफ कोर्स इट हैज सम मसाला ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, बट हाँ इसमें आई थिंक जो बेस काम होता है वो इसी से ही होता है कि आप जैसे जैसे उसके बारे में पढ़ते जाते हो, आई थिंक उसके पीछे का जो आर्किटेक्चर है वो बनता जाता है. सो नाइस. आपके कोई messages that you want to give to the youth, because I'm assuming my audience will be I'm also part of youth. Of course, we are also very young, right? We're just like 21 forever types. Gen Zs to like, is there some message you want to give out to the Gen Alpha and the later Gen Zs who were born after 2000, जो शायद ये देख रहे हैं, जिनकी अभी स्टार्ट हो रही है these pursuits की, अभी पोएट्री में घुस रहे हैं या फिर अभी म्यूजिक में घुस रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, but somebody who is getting into poetry, is there something that you want to tell to them so that it kind of makes their life, not, I wouldn't call it make their life easier, but perhaps it allows them to be a little more relaxed in their pursuit? I think जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है वो ये कि खुद के साथ वक्त बिताना सीखो, राइट? एंड ऑफ कोर्स नॉट विद एनी काइंड ऑफ गैजेट्स और टेक्नोलॉजी, राइट? जस्ट स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. इट कैन बी कि जैसे आप वॉक करने भी जा रहे हो, राइट? जस्ट गोइंग फॉर अ 10-15 मिनट्स वॉक. आई थिंक आई हैव आल्सो रियलाइज कि बहुत सारे थॉट्स आपके उसी समय आते हैं, राइट? बट बिकॉज ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल, I think we are losing the originality of things, right? कि बहुत ज़्यादा there's too many things, like to think about, and कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, right? हम लोग किसी से compare कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, but इन सब के बीच में we should also live our lives, right? We should be grateful for what we have, and हाँ बस वक्त बिताओ अपने साथ. I think, and any kind of art, right? If you can pursue any kind of art, I think it will be very beneficial in your life, because it not only helps to, of course, build a skill or something. I think it also helps to understand life much better. कि आपको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. आप उन सब चीजों को अप्लाई करना भी चालू करते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, नॉट ग्रामेटिक्स एंड पोएट्री, ये इमोशंस को समझने में बहुत हेल्प करता है. मुझे दूसरों के इमोशन समझने में हेल्प करता है, मुझे खुद के इमोशन समझने में हेल्प करता है, लाइफ को बेटर समझने में हेल्प करता है, राइट? एंड प्रॉब्ली इन आल्सो टेकिंग बेटर डिसीजंस एज वेल. आई थिंक बहुत सुकून देता है मुझे. तो मैं अगर मैं पर्सनली उसका बताऊं, राइट, कि इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस.
एंड वो जो सुकून है वो मिलता है आपको, आई थिंक, इन दिस फास्ट लाइफ जो हम लोग की है, और हम लोग इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, आई गेस इट्स जस्ट नॉट, अनलेस आप बिल्कुल ही पहाड़ों में चले जाओ, एंड इफ यू कैन टेक दैट थिंग व्हिच ही डज, आई गेस, राइट? सो बट वो भी क्या होता है कि वो आपके साल में कुछ ही दिन होते हैं जब आप वहां पे होते हो, राइट? बट व्हाई कांट यू ब्रिंग दैट इन योर सिटी लाइफ, राइट? आपका कमरा तो आपका खुद का है ना, तो वो तो आप खुद से सजा सकते हो, वो आप आपकी दुनिया बन सकता है, राइट? So I think that can be done, right? So start living, and of course, use technology is super important in our lives. But it should be a part of your life, not your entire life. I guess if you can do that. जैसे योर then yeah. पेरेंट्स टेल यू पूरा टाइम फोन पे रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ओके स्टॉप स्ट्रेसिंग. Yes, I think this is very important. कि हाँ, जिंदगी जियो और जीने दो. Ironically, this entire podcast, all of the episodes, everything is being shot on phone. तो इतना भी दूर मत रहो. Like, figure it out. कोई balance create करो. Also, on that note, Shubham, thank you so much for your time. But Thank you, man. Thank we you. are not done yet. Yeah. अभी we have something specifically for you. Sure. ठीक है, मतलब मैं सबको यही बता रहा हूँ कि वो specifically उन्हीं के लिए है. But मैंने mass produce किया हुआ है. Some merch, you all can find it out on the e-store. I will share a link to it probably in the description. And here's what we have for Shubham. Shubham, we have Thank you, man. a t-shirt. Okay. Here's the t-shirt. You can open it and check it out. We have a t-shirt for. Looks very nice. We can sit down and This is my do this. This is my anyway the favorite color, black. So we've got a black t-shirt. This is for summer. मैं अपने guests का बहुत ध्यान रखता हूँ. So this is the summer, and Oh, this, wow. right? Certified smart shit. So now Shubham is certified smart shit because he's been on the podcast. And if you can see, we are not people who follow. This is the back side, by the way, of the t-shirt. The front side of the t-shirt, you can see, we don't follow rules. This is where the liver is usually. So this is what we are coining the liver logo, as you have seen on every episode before this. And Nice. we are not looking out for our guests only during summer. Here's another sweatshirt for you. Thank you. You can check it out. You can put it on and show the camera what it looks like, or we can do that later. But yeah, let me have this. I'll just place it somewhere in the back. School man. Right? Here, so everything is Yeah. double XL. You don't get to choose which size or which color, but you can have any size and any color as long as it's double XL and black. Cheers. Thanks a lot, Shivankar. You can wear one if you want to, Sure, but we can keep that for later. अभी बहुत गर्मी हो रही है. So, Shubham, if but- you have any final thoughts, Yeah, sure. I'll yes, please do tell. Okay, so I think I'll Yes. probably recite something. Yes, this is the best way to close is फिर से काम करा. Yes, से. Sure, I'll have to find. So मैं एक मिनट just check करता हूँ. It's your boy Shiv, and that's Shubham. Filling up the silences. Yes, we Anyway, I'm make not- every silence awkward for everyone, Anyway, and तुमको देख के cringe feel होना चाहिए. ठीक है? If you don't feel cringe, something is wrong with you. थोड़ा बहुत edit कर देंगे. Yes. Also, big credits to Tarun. Tarun, please show your face here, na thoda sa, on both the cameras. Hello. This one also. This is, yes. Huh. Tarun is our big man. He is taking care of all of this fancy stuff that's going on. And obviously, one more big shout out to Nikhil and Tara's Clayworks. You all can see all of these fine pieces. Come order, or I will come to your house. ठीक है? Cheers. Shubham, if you could. ठीक है. Thanks. Yes. Yeah, thanks to Tarun as well for shooting this amazing in the amazing way. Right. So तो हाँ, 2-3 है, छोटी सी है शायरी. Let's go. तो मैं सुनाता हूँ. कॉल्स किया है कि इरशाद. फिर गलती से 2 चाय बन गई हैं. वाह. फिर गलती से 2 चाय बन गई हैं. तुम्हारी वाली मीठी है और मेरी फीकी. वाह. Right. So थोड़ी सी ये शरारती वाली शायरी कि हैरान हूं मैं तेरे घर पुलिस नहीं आई अभी तक. हैरान हूं मैं तेरे घर पुलिस नहीं आई अभी तक. तेरी आंखों ने कितनों को लूटा है. वाह.
वाह, शुक्रिया शुक्रिया। तो हाँ, ये कुछ ऐसी छोटी शायरी है। बट हाँ, एक एक पोयम है थोड़ी सी, जो मुझे जावेद जावेद अख्तर साहब की काफी पसंद है, राइट? तो वो मैं सुनाता हूँ, राइट? इरशाद। तो ये हियर इट गोज कि मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है वाह, और अब मेरी चाल के इंतजार में है, मगर मैं कब से सफेद खानों सियाह खानों में रखे काले सफेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या है, ना ये जरूरी ना वो अहम है। अगर खुशी है ना जीतने की, ना हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है। मैं सोचता हूँ ये जो खेलना है वो दुश मैं सोचता हूँ कि जो खेलना है, ये अपने दिल में यकीन कर लूं कि ये जो मोहरे हैं सचमुच के बादशाह और वजीर हैं। ये दुश्मनों की वो फौज है कि जो मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सारे इरादे। मगर ऐसा जो मैं मान लूं तो सोचता हूं कि ये खेल कम है, ये जंग है जिसको जीतना है। ये जंग है जिसमें सब है जा ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे, ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कोई आंच ना आए। वजीर को भी वजीर को ही है बस इजाजत कि वो जिस तरफ जाए वो वहां का हो जाए, राइट? मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना आने पाए। वाह, मैं सोचता हूँ अगर यही उसूल है तो फिर उसूल क्या है। अगर यही खेल है तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरे चाल के इंतजार में है। वाह। All right, that तो brings us to the end of the episode. ज्यादा चाहिए तो फिर पैसा दो, ठीक है पहला। Okay, so Shubham, thank you so much for coming, for your थैंक यू मैन, time, थैंक्स फॉर and इनवाइटिंग मी। let's get famous. Cheers. थैंक यू। All right, cheers. See you guys. See you on the next episode. All right, now that you're done watching the episode, don't forget to hit like, drop a comment, and please click on the subscribe button because it's free for you, but it means a lot to me. And don't forget to sign up on our Patreon. We have a little more exclusive content and we're a little more chill there. So go check it out. And thank you for watching.